بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ٹرمپ کے ہٹنے سے پہلے امریکہ کے B-52 بمبار جہازوں نے ایک مرتبہ پھر بھری مڈل ایسٹ میں اڑانیں۔ ایران نے کہا امریکی اڑانوں کی کوئی اہمیت نہیں، دوسروں کو ڈرانے کے بجائے عوام کی صحت پر پیسہ خرچ کیا جائے۔ بائیڈن کی حلف برداری سے پہلے واشنگٹن کی ناکہ بندی، تمام ریاستی دارالحکومتوں میں چوکسی، نیشنل گارڈز تعینات۔ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر کیے غزہ میں حملے، حماس پر راکٹ حملوں کا الزام۔ امریکہ میں اگلے مہینے کووڈ موتیں 5 لاکھ ہو جائیں گی، بائیڈن کے چیف آف سٹاف نے دی وارننگ۔ 'مراد آباد میں ویکسین لینے کے بعد ایک شخص کی موت، انڈیا میں تیسرے دن ٹیکہ اندازی مہم۔ چھبیس جنوری کو کسانوں کے ٹریکٹر مارچ پر فیصلہ، دہلی پولیس کرے، سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ برسبن ٹیسٹ کے چوتھے دن سراج چھا گئے، پہلی مرتبہ 5 وکٹ حاصل کیے، ٹیم انڈیا کے سامنے 328 کا ٹارگٹ۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے۔ امریکہ کے B-52 بمبار ہوائی جہازوں نے ایک مرتبہ پھر مڈل ایسٹ میں اڑانیں بھریں۔ ایران نے ان اڑانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اپنا فوجی بجٹ ڈرانے دھمکانے کی چالوں کے بجائے امریکی شہریوں کی صحت پر خرچ کرنا چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اتوار کو تصدیق کی تھی کہ حفاظتی پالیسی کے تحت یہ اڑانیں بھری گئیں۔ یہ اڑانیں ایک ایسے وقت بھری گئیں جب سیکیورٹی ایکسپرٹس نے وارننگ دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کے آخری دنوں میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب ٹرمپ کی صدارت کے صرف 2 دن بچے ہوئے ہیں۔ 20 جنوری کو پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن حلف لینے والے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکی فوج نے ایران کے خلاف کئی قدم اٹھائے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے B-52 بمبار جہازوں کی اڑانوں پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے ٹیکس پیئرز کا پیسہ لوگوں کی صحت اور علاج پر خرچ کرنا چاہیے اور دوسرے ملکوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم نے 200 سال میں کبھی بھی کوئی جنگ شروع نہیں کی، لیکن ہم جارح طاقتوں کو کچلنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ حالیہ عرصے میں 5ویں مرتبہ امریکہ نے اپنے B-52 بمبار ہوائی جہازوں کو اڑایا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کافی بڑا ہوا ہے۔ نومبر میں ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد سے تناؤ میں اضافہ ہوا۔ ایران نے اس ہلاکت کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اتحادی ہے۔ 2 دن پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف بعض نئی پابندیاں لگائی تھیں۔
ईरान के एक सीनियर कमांडर ने अमेरिका की उड़ानों को नजरअंदाज कर दिया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने, जो ईरानी फौजों के चेयरमैन हैं, कहा कि इन उड़ानों की कोई स्ट्रैटेजिक अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी ताकत के मुजाहरे की जो कोशिश कर रहा है, उससे इशारा मिलता है कि वो इस्लामी जमहूरिया ईरान की ताकत से डरा हुआ है। अमेरिका में बाइडेन की हलफबर्दारी से पहले सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाशिंगटन और रियासती दारुल हुकूमतों में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। ऐसी खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी बड़े पैमाने पर मुजाहरे कर सकते हैं। अमेरिका के कानून लागू करने वाले इदारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हलफबर्दारी के मौके पर कोई हमला भी हो सकता है। मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमलन वाशिंगटन को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। तमाम रियासती दारुल हुकूमतों में भी ऐसे इंतजामात किए गए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। मिशिगन, वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और दूसरी रियासतों में नेशनल गार्ड्स को चौकस रखा गया है। इस दौरान वाशिंगटन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने फर्जी दस्तावेजात के साथ कैपिटल पुलिस के चेक पॉइंट से गुजरने की कोशिश की। उसके पास हथियार और गोला बारूद भी था। हाल ही में 6 जनवरी को ट्रंप के हामियों ने यूएस कैपिटल पर उस वक्त हमला किया था जब कांग्रेस में प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के चुनाव की तस्दीक का दस्तूरी अमल जारी था। उस गड़बड़ के दौरान 5 लोग हलाक हुए थे। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया कि कैपिटल हिल गड़बड़ में कम से कम 21 मौजूदा या साबिक फौजी भी शामिल थे। अमरीकी फौज इन खबरों की तहकीकात कर रही है। बाइडेन और कमला हैरिस की हलफबर्दारी के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम 20 इंडियन अमेरिकन को शामिल किया है, जो एक रिकॉर्ड है। खबरों में कहा गया कि बाइडेन अपने ओहदे के पहले ही दिन ट्रंप के कई फैसलों को उलट देंगे, जिनमें बाज़ मुस्लिम मुल्कों के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी का फैसला भी शामिल है। इसके अलावा बाइडेन पेरिस क्लाइमेट डील में वापस जाने का भी इरादा रखते हैं। उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने का भी इशारा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मंगल को 100 कैदियों को माफ करने का हुक्म जारी कर सकते हैं। इसराइल ने गाजा में एक मरतबा फिर हवाई हमले किए। इसराइली फौज ने बताया कि इन हमलों में हमास के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये भी दावा किया गया कि गाजा से इसराइल के शहर अशदूद के करीब रॉकेट हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई। नुकसानात के बारे में फौरी कोई खबर नहीं मिली है। इसराइली फौज के ओहदेदारों ने बताया कि गाजा से छोड़े गए रॉकेट समंदर में गिरे। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइल के एक जंगी हवाई जहाज से 2 रॉकेट्स फायर किए गए, जिनमें से एक रफा के करीब खेत में गिरा, जिसे कुछ नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के एक और हवाई जहाज ने खान यूनुस के करीब 2 रॉकेट्स दागे, जिससे खान की जायदादों को नुकसान पहुंचा। इस तरह के वाकयात बहुत आम हो गए हैं। मगरबी किनारे के नाबलस शहर में यहूदी आबादकारों ने एक फलस्तीनी घर पर हमला किया। इस वाक़े में एक फलस्तीनी बच्ची जख्मी हुई। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि यहूदी आबादकारों ने इस बच्ची के अगवा की कोशिश की। इसराइली फौज को ओहदेदारों ने उम्मे खुसा इलाके में एक मस्जिद और एक स्कूल को गिराने का हुक्म दिया गया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने फलस्तीन में इलेक्शंस की तारीखों के ऐलान पर खुशी का इजहार किया और उसे एक अहम कदम करार दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इससे फलस्तीनी इदारों को जायज़ हैसियत हासिल होगी और फलस्तीनियों में इत्तेहाद पैदा होगा। 15 साल में पहली मरतबा फलस्तीन में इलेक्शंस का ऐलान किया गया है। यमन के अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक ने उसे दहशतगर्द करार देने के अमेरिका के फैसले की मजम्मत की है और कहा है कि अमेरिका की मौजूदा ट्रंप हुकूमत खुद आलमी दहशतगर्दी की स्पॉन्सर रही है। अंसारुल्लाह तहरीक के एक ओहदेदार मोहम्मद हुसैन अल इदरुस ने मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, ब्राजील के अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखते हुए ये बात कही। उन्होंने यमन में सऊदी अरब के हमलों की मुसलसल तायद करने पर भी अमेरिका की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद की वजह से सऊदी इत्तेहाद ने यमन में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और जराइम किए हैं और यमन को तोड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा यमन की ज़मीन पर कब्जा करते हुए उसकी दौलत को लूटा गया है। हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ऐलान किया था कि अलहूसियों को आलमी दहशतगर्द करार देने की कार्रवाई की जाएगी। सीरिया में जोलान पहाड़ियों के करीब एक हमले में 3 फौजी हलाक हो गए। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने, जो लंदन से काम करती है, ये बात बताई। सरकारी मीडिया में इसे दहशतगर्द हमला करार दिया गया।
दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर कोविड-19 की खबरों और खेल की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार सुर्खियों के पेश करदा है। मलेका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलेका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। ट्रंप के हटने से पहले अमेरिका के B-52 बमबार जहाजों ने एक मर्तबा फिर भरी मिडल ईस्ट में उड़ानें। ईरान ने कहा अमेरिकी उड़ानों की कोई अहमियत नहीं, दूसरों को डराने के बजाय अवाम की सेहत पर पैसा खर्च किया जाए। बाइडेन की हलफ बर्दारी से पहले वॉशिंगटन की नाकाबंदी, तमाम रियासती दारुल हुकूमतों में चौकसी, नेशनल गार्ड्स तैनात। इसराइल ने एक मर्तबा फिर किए गाजा में हमले, हमास पर रॉकेट हमलों का इल्जाम। अमेरिका में अगले महीने कोविड मौतें 5 लाख हो जाएंगी, बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ ने दी वार्निंग। मुरादाबाद में वैक्सीन लेने के बाद एक शख्स की मौत, इंडिया में तीसरे दिन टीका अंदाजी मुहिम। छब्बीस जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला, दिल्ली पुलिस करे, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन सिराज छा गए, पहली मर्तबा 5 विकेट हासिल किए, टीम इंडिया के सामने 328 का टारगेट। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हिंदुस्तान की पार्टी बीजेपी ने इलेक्शंस में फायदा हासिल करने के लिए 2019 में बालाकोट हमले का ड्रामा किया। ये एक फॉल्स फ्लैग या झूठा ऑपरेशन था। इमरान खान ने ट्विटर पर यह बात कही। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बनाया है। इस गांव में 101 मकानात हैं और यह हिंदुस्तानी इलाके में 4.5 किलोमीटर अंदर है। ये गांव सारीच नदी के किनारे वाक़ है।
बात कोविड-19 की। इंडिया में वैक्सीन हासिल करने के बाद मौत का एक वाकया पेश आया है। मुल्क में हफ्ते को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी। खबरों में कहा गया कि महिपाल सिंह नामी शख्स को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत हुई और 24 घंटों के अंदर उसकी मौत हो गई। इस शख्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड दी गई थी। मुरादाबाद जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इस मौत की तस्दीक की। एक दिन पहले वजारत सेहत ने बताया था कि बाज़ लोगों को वैक्सीन के नुकसानदेह असरात पड़े हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और इनमें से सिर्फ 3 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ा। वजारत सेहत के अहदेदार ने बताया था कि 447 लोगों को टीका लेने के बाद नुकसानदेह असरात पड़े हैं। पहले 2 दिनों में 2,24,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया गया। मुल्क भर में तीसरे दिन पीर को टीका अंदाजी मुहिम चलाई गई। इतवार को सिर्फ 6 रियासतों में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई थी। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 13,778 नए कोविड केस पाए गए, जो जून के बाद से सबसे कम केस हैं और पहली मरतबा जून के बाद से 15,000 से कम डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 145 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में रिकवरी रेट 96.59% हो गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन ने वार्निंग दी है कि अमेरिका में कोविड मौतें फरवरी के ख़त्म तक 5 लाख हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वायरस की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग आज वायरस से मुतासर हुए हैं वो अगले महीने बीमार पड़ेंगे और फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में उनकी मौत भी हो सकती है। अमेरिका में कोविड मौतें तेज़ी से 4 लाख के करीब पहुँच रही हैं। रोज़ाना औसतन 3,300 अमरीकियों की मौत हो रही है। पिछले एक हफ्ते में औसतन 2,19,000 डेली केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लबनान में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें हैं, इस वजह से बाज़ लोगों की मौत भी हुई है। यूएई में 3,471 नए केस पाए गए हैं और 6 मौतें हुई हैं। सऊदी अरब में अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। वजारत सेहत ने यह बात बताई। वजारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल अली ने बताया कि वैक्सीन बहुत अहम और ताकतवर हथियार है जिसके ज़रिए हम सेहतमंद रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वैक्सीन के बुरे असरात नहीं पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 176 नए केसों की तस्दीक की गई है और 5 मौतें हुई हैं। हांगकांग में 107 नए कोविड केस पाए गए, जो हांगकांग के हिसाब से कुछ ज़्यादा हैं। बरतानिया ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं है और इसमें तेज़ी की ज़रूरत है। वैक्सीन से मुतालिक एक अहदेदार ने यह बात बताई। इस दौरान बरतानिया की हुकूमत ने इशारा दिया है कि मार्च में लॉकडाउन हटाया जा सकता है। बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के ताल्लुक से फैसला करे। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की क़यादत वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस की एक दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। इस मामले में 20 जनवरी को दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि नए ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली का जो मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और दिल्ली पुलिस पहली अथॉरिटी है जिसे इस बात का फैसला करना चाहिए कि क्या इस रैली की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में बीजेपी के एक रोड शो के दौरान पथराव किया गया। ये वाकया चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की नंदीग्राम रैली के बाद पेश आया। खबरों में कहा गया कि छतों से बोतलें फेंकी गईं और तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामे हुए बाज़ लोगों को गो बैक के नारे लगाते हुए देखा गया। बंगाल में अप्रैल में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जिसमें हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला होने वाला है। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 328 रन का टारगेट दिया है। जिस वक्त ब्रिस्बेन में चौथे दिन का खेल खत्म हुआ, हिंदुस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 4 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम,
चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप के हटने से पहले अमेरिका के B-52 बमबार जहाजों ने एक मर्तबा फिर भरी मिडल ईस्ट में उड़ानें। ईरान ने कहा अमेरिकी उड़ानों की कोई अहमियत नहीं, दूसरों को डराने के बजाय अवाम की सेहत पर पैसा खर्च किया जाए। बाइडेन की हलफबर्दारी से पहले वॉशिंगटन की नाकाबंदी, तमाम रियासती दारुल हुकूमतों में चौकसी, नेशनल गार्ड्स तैनात। इसराइल ने एक मर्तबा फिर किए गाजा में हमले, हमास पर रॉकेट हमलों का इल्जाम। अमेरिका में अगले महीने कोविड मौतें 5 लाख हो जाएंगी, बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ ने दी वार्निंग। मुरादाबाद में वैक्सीन लेने के बाद एक शख्स की मौत, इंडिया में तीसरे दिन टीका अंदाजी मुहिम। छब्बीस जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला, दिल्ली पुलिस करे, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन सिराज छा गए, पहली मर्तबा 5 विकेट हासिल किए, टीम इंडिया के सामने 328 का टारगेट। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।